Hello students of class 8, how are you all student? I am your science teacher DPS sir from LPM Public School Gola Vajay Gorakhpur. Student, as you know, chapter 14 has been over and today I am going to revise chapter 10 again, that is the force and pressure. Chapter 10, force and pressure. So student, let's start the chapter today. Student, in this chapter we will study about the concept of force. What is force? What are different effects of force? Unit of force, different forces, about the what is pressure, and the presence of atmospheric pressure with examples. Student, in our everyday life we experience many situations comes where force are involved. Student, हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं बहुत से ऐसे काम होते हैं जो फोर्स जहाँ पे फोर्स का बल का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टूडेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू ओपन द डोर और क्लोज द डोर, सो दरवाज़ा खोलते वक्त या दरवाज़ा को बंद करते वक्त आप वहाँ पे बल का प्रयोग करते हो। सो पुल एंड पुश, आप या तो आप खोलते वक्त आप पुल करोगे, बंद करते वक्त आप पुश करोगे। तो पुल एंड पुश, for doing this type of activities or actions there need the application of force, because without applying the force you can't pull or push. This type of action could only be done by applying the force. Suppose that student, you want to make a ball to move, so to make a ball move you have to apply the force. What do you do to make it more faster? Suppose a ball is already in moving position and you just kicked it from behind the moving ball. Now the ball start moving more faster than its previous motion. So here also you have applied the force to move the ball more faster than its previous motion. So we often say that force has been applied to make the object move faster. Or suppose an object which is already in moving and you have applied the force from behind by pulling little bit to just slow down the speed of that moving object. So here also you are applying the force. That means you are applying the force to open or close any object. By pull and push you are applying the force to speed up any moving body or to slow down any moving body. So what is force? What is the effect of the body? What is the effect on the body on which the force is applied? In this chapter we will study about the force and its different effects. We will also study about the pressure exerted by the solid, liquid and gas. So student, let's start the topic about the force. Force, a push or pull. Even every time you move your pencil or you open the door, you are using either a push or a pull. We need a push or pull things to move them around. Forces are used in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, etc. So student, all doing all these type of actions like pushing, pulling, lifting or stretching, there is a need of requirement of force. Thus, a force is a push or a pull upon an object resulting in the change of state or position. By applying the force, we can either change its position or we can change its state. Now, student, force are due to interaction. Interaction means force only act when two body comes in contact with each other. For example, in the adjoining figure here you can see the two child are pulling each other as they have connected their hand, and their one girl is pulling behind her force and the other is pulling backward. So they both are applying the opposite forces and they are by holding their hand. Suppose while playing football, instead of hitting the ball,
You just stand near it. Will the ball move? The answer is no. Thus, without doing any actions, without touching or without doing any action of the object, the force can't be applied. Okay, student? Now, student, you can see here in this figure behind by the side, the two boys are pushing a box from the same side, and both them are applying the force in the same direction, so the object will move in their opposite side. The direction in which they are in which they are applying the force, in that direction the box will move. But here you can see the student, the box applied on which the force is applied by the two boys on the from the opposite side. If the force of both the boys is equal, then the box will not move a single inch either any of the side. But if the force of any one boy is greater than the other, then the boy whose force is greater, so the box will move in opposite to that force which is greater applied by the boy. So next, student, consider the game of tug of war means एक रस्सा खींचने वाली गेम होती है, where in the two teams exert force on a rope to in opposite direction. दो टीम opposite direction में force लगाते हैं. The team that pulls harder move the rope in the direction and wins. और जो टीम ज़्यादा बल लगा के रस्से को खींचने में कामयाब हो जाते हैं वो टीम जीत जाते हैं. The rope may not be in the situation when the two team pull विद इक्वल फोर्स. अगर दोनों टीम एक तार एक समान बल लगाएंगे तो रस्सा एक इंच भी किसी की तरफ नहीं खिसकेगा और वहीं का वहीं बना रहेगा. थस टू फोर्सेस कुड बी इक्वल और अनइक्वल. इस प्रकार हमने देखा दो फोर्सेस इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं. अगर इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं मूव करेगा. अगर अनइक्वल होंगे तो जिस तरफ फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है वो ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव कर जाएगा. द स्ट्रेंथ उस दिशा में मूव कर जाएगा जिधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है. द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. फोर्स की बल उसकी क्षमता से आंकी जाती है, आकलन की जाती है. इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इफ सपोज जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, हाँ, इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, अगर बदल दिया जाता है तो उसके प्रभाव भी बदल जाएंगे. व्हेन मोर, जैसे कि सपोज दैट ऊपर आपने देखा दो बच्चे मिलके एक ही तरफ एक बॉक्स को ढकेल रहे हैं तो एक दिशा में मूव कर रहा है, पर इधर में दोनों बच्चे का बल दोनों तरफ लग गया तो बॉक्स कहीं भी नहीं जाएगा. तो अगर उसके दिशा बदल दिए जाए तो उसका मूवमेंट फोर्स भी बदल जाएगा. नाउ स्टूडेंट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या प्रभाव होते हैं? फोर्स के नीचे दिए गए उनके बारे में बता रहा जा रहा है सर. इनफैक्ट नो वन हैज़ बीन सीन और टेस्टेड फोर्स. किसी ने बल को देखा नहीं है, पर बल के लगाए गए प्रभाव ही हम केवल देख सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को ही केवल हम देख सकते हैं. तो फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? फोर्स से स्टूडेंट, बाय द हेल्प ऑफ अ फोर्स वी कैन stationary object move. We can make an stationary object. We can make a stationary object move. हम बल लगा के कि किसी स्थायित्व वस्तु को जो स्थिर हो, जो एक पोजीशन में पड़ा है, उसको हम फोर्स लगा के मूव करा सकते हैं. या तो फोर्स हम लगा के किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं. नेक्स्ट, फोर्स लगा के किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की दिशा या उसकी स्पीड बदल सकते हैं. अगर कोई सपोज इफ एनी बॉय इज साइकिलिंग and another boy pushed him from behind, so very soon the speed of that cycling boy will increase, as because the cycle was already in motion and little bit more pressure was applied from behind. Then here the force will add to that moving cycle and it will speed up. In same way, if anyone tries to pull the moving cycle, so the speed of the moving cycle will slow down. तो हम बल का प्रयोग करके किसी स्थिर वस्तु को मूव करा सकते हैं, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं.
बल का प्रयोग करके किसी मूविंग बॉडी का स्पीड हम बढ़ा सकते हैं या किसी मूविंग बॉडी का स्पीड को हम कम कर सकते हैं। फोर्स अप्लाई करके किसी चीज़ का हम शेप और साइज बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर बैंड, इफ़ यू स्ट्रेच द रबर बैंड, द शेप will increase and the size will also the shape will change and the size will also increase, and as soon as you release the force it will again come back to its previous form. Means फोर्स लगा के किसी चीज़ का हम शेप और साइज बदल सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। फ्यू मोर थिंग्स आर देयर, कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे फोर्स लगा के किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का हम दिशा बदल सकते हैं। सपोज दैट इफ टू बॉयज आर प्लेइंग बैडमिंटन, वन इज हिटिंग द feather, and when the feather is going to the other side, the same moment the other person hits that feather, and at that moment he is hitting, the feather turns its direction. सो फोर्स लगा के किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लेन मी अबाउट द फर्स्ट। अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। पुशिंग, पुलिंग एंड हिटिंग थिंग्स आर द वेज ऑफ मेकिंग थिंग्स मूव। सो स्टूडेंट, पुशिंग करके या पुलिंग करके या हिटिंग करके चीज़ों को आर द वेज, ये वो तरीके हैं जिससे हम चीज़ों को मूव करा सकते हैं। दे मूव बिकॉज, ये इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे बल का प्रयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी किक ए फुटबॉल, जैसे कि अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं, अगर फुटबॉल ज़मीन पे रखी हुई, फर्श पे रखी हुई फुटबॉल को किक करते हैं अपने पैरों से, द फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग, तो फुटबॉल मूविंग करना स्टार्ट कर देगा। व्हेन द गोल्फ क्लब हिट द बॉल मूव्स। सेम वे द ड्रॉयर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज यू पुल, जिस दिशा में आप खींचेंगे, बल लगाएंगे, उस दिशा में ये मूव कर जाएगा। व्हेन यू पुश ए ट्रॉली इट मूव्स फॉरवर्ड, जब आप एक ट्रॉली को पुश करेंगे तो जिस दिशा में आप प्रेशर फोर्स लगा रहे हो उस दिशा में वो ट्रॉली मूव कर जाएगा। इस प्रकार से फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मेक इट मूव, यानी कि फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं। द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, और जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। किस प्रकार से? टू शो द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अ रबर बॉल, सपोज दैट गोल पोस्ट में गोलकीपर, फुटबॉल प्लेयर हिट करता है बॉल को हार्डली गोल पोस्ट में गोल करने के लिए, पर जो गोलकीपर होता है वो अपने हाथों से उस बॉल को फोर्स लगा के उसको गोल पोस्ट के अंदर जाने से रोक लेता है। यानी यहाँ पे फोर्स लगा के किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा रहा है। ओके, जेंटली पुश द बॉल अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द टेबल, डज द बॉल बिगिंस टू मूव। यहाँ कह रहा है टेक ए रबर बॉल, एक रबर बॉल को ले लो आप, एंड प्लेस ऑन द लेवल सरफेस, एक समतल फर्श पे आप उसको रख दो, जैसे कि मान लो टेबल के टॉप, टेबल के ऊपर रख दो। जेंटली पुश द बॉल, और आप उस बॉल को पुश करो धीरे से along the surface of table. Does the ball begin to move? क्या बॉल मूव करेगा? बिल्कुल मूव करेगा। पुश द बॉल अगेन while it is still moving, जब बॉल ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर चुका है, वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसी अवस्था में फिर एक बार पीछे से पुश करिए, तो क्या होगा? उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से वो मूव कर रहा है, हल्का सा और पुश कर दिया तो उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी। नाउ प्लेस योर आर्म इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, अब उसके अपोजिट साइड में अपने हाथों को रख दीजिए और उस बॉल को रोक दीजिए। रिमूव, थोड़ा सा रोकने के बाद अपने हाथों को उठा लीजिए, तो बॉल टकरा के, अगर आप अपने हाथों को अगर नहीं उठाएंगे तो बॉल वहीं रुक जाएगा। अगर आप थोड़ा हाथ रख के जब वो बॉल आपके हाथों से टकरा जाती है फिर तुरंत अगर हाथ को उठा जाते हैं तो वहाँ वो बॉल रुकने के बजाय उसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो जाएगी। डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल, क्या आपके पाम ने वहाँ पे दोबारा कोई फोर्स लगाया? हाँ बिल्कुल, उस बॉल को रोकने के लिए या उसकी स्पीड को धीमा करने के लिए वहाँ पे हाथों का बल लगाया गया। व्हाट हैपन्स टू स्पीड बॉल नाउ, अब उस बॉल की स्पीड का क्या होगा? उस बॉल की स्पीड धीमी हो जाएगी। सो फ्रॉम एबव एक्टिविटीज़, ऊपर एक्टिविटीज़ से हमने ये देखा कि हम फोर्स लगा के किसी स्टॉप बॉडी को मूव करा सकते हैं या किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को और बढ़ा सकते हैं या किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को हम कम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स लगा के
किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का हम स्पीड बदल सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऑलरेडी मूविंग बॉल को अगर हम पीछे से हिट करें तो और तेज़ी से मूव करने लगेगा, या ऑलरेडी मूविंग बॉडी को हम थोड़ा सा फोर्स लगा के स्टॉप करें तो उसकी स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाएगी. सो अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग, अगर कोई वस्तु ऑलरेडी मूविंग कर रहा है एंड ए फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, और अगर बल हम उसी दिशा में लगा रहे हैं एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इन देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. तब अगर ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे हम दोबारा फोर्स लगा दिए तो उस डबल टाइम अप्लाइड फोर्स से वो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, गस्ट ऑफ विंड कैन स्पीड द सेल बोट. नाव ऑलरेडी मूव कर रही है, एक सेल बोट ऑलरेडी पानी में मूव कर रहा है, पर अगर हवा तेज चले तो नाव की स्पीड और बढ़ जाएगी. ए पर्सन राइडिंग ए बाईसाइकिल, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है टूवर्ड द नॉर्थ एंड द विंड ऑलवेज ऑल्सो ब्लोइंग सिम, विंड मान ली तेज हवा चलने लगा तो इसकी स्पीड जो है एकाएक बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना अपना फोर्स लगा के बाईसाइकिल तो चला ही रहा है, साथ ही साथ विंड के फोर्स ने उसकी स्पीड को और बढ़ा दिया. ओके, सिमिलरली उसी प्रकार, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, और फोर्स हम अपोजिट दिशा की तरफ लगा रहे हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, देन द सपोज दैट वही सेल बोट पानी में नॉर्थ की तरफ जा रहा है पर अपोजिट साइड से हवा चल रही है, तो वो अपोजिट साइड से चलने वाली हवा इस मूविंग बोट को की स्पीड को धीमी कर देगी. ओके, सेम वे यू कैन अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए मैन विद द ट्रॉली हैज़ टू गो डाउन हिल, अगर नीचे जा रहा है, द ट्रॉली स्टार्ट्स टू मूव टू फास्ट, तो ट्रॉली एक काफ़ी फास्ट मूव करेगा एंड ही नीड्स टू स्लो इट डाउन, और उसको वो धीमे करने के लिए उसको पीछे से पकड़े रहना पड़ेगा और अपनी तरफ खींचे रखना पड़ेगा. टू मेक द ट्रॉली स्लो डाउन द मैन मस्ट पुल इट, उसको अपनी तरफ उसको खींच के रखना होगा. द पुल फोर्स अप्लाई करना होगा यहाँ पे, मस्ट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द वे, उस ट्रॉली के मूविंग के अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना होगा ताकि उसकी स्पीड को कम किया जा सके. Thus, a force in the opposite direction slows the trolley down. So, student, today I have explained you about I have just defined what is force and the type of force which is applied, that is push or pull. Then I have explained you the effects of the force, and what are the effects that I have also explained you, that the force effect is that it can make a stationary object move, it can make a moving object stop, it can change the speed of a moving object, as well as it can change the shape and size of an object, in which I have explained by giving the example of a trolley or a drawer which is stationary, and when we pulled it came out. Okay, same way I give example of a force can moving object stops. There I have explained you by the goalkeeper and the goal post, giving example that a goalkeeper, when the football player kicks the ball for putting a goal, the goalkeeper tries applying a force, he tries to stop that moving ball. So here the goalkeeper is applying the force to stop the moving object. So by all these examples I have explained today the force and its effects. So student, for today, thank you, have a nice day, meet you in the next class.